Good morning. Today I am going to let you know in sociology something about objectivity which I have not discussed yet. जैसा हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक अनुसंधान की शुद्धता के लिए इसके निष्पक्ष परिणामों और निष्कर्ष के लिए निष्पक्ष अवलोकन के लिए वस्तुपरकता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी की नितांत आवश्यकता होती है। मेरे पिछले कुछ लेक्चर्स ऑब्जेक्टिविटी के बारे में थे। आज भी मैं ऑब्जेक्टिविटी के वस्तुपरकता के एक नए पहलू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत ऑब्जेक्टिविटी संबंधी क्या समस्याएं होती हैं, अर्थात लोग या अनुसंधानकर्ता ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रखने में क्यों असफल हो जाते हैं, और साथ ही मेरे व्याख्यान का फोकस होगा इस बात पर कि सामाजिक अनुसंधान में किस प्रकार ऑब्जेक्टिविटी को लाया जाए, किस प्रकार वस्तुपरकता रखी जाए। निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में समाज वैज्ञानिक भी समाज का सदस्य होता है और जिन लोगों पर अध्ययन किया जाता है या जो सूचना की इकाइयाँ होती हैं वे भी समाज के ही सदस्य हैं और कहीं ना कहीं वस्तुपरकता को बाधित करते हैं सामाजिक अनुसंधानकर्ता के अन्य लोगों के साथ में जो संबंध हैं वो संबंध। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस lecture especially the problems of objectivity in social research and to how to bring objectivity, how to maintain objectivity, how to ensure objectivity in social research. So this is the sole focus of this lecture today. मैं शुरुआत करूंगा वस्तुपरकता के अर्थ के साथ। हिंदी में मैं पहले बता चुका हूं एंड नाउ आई एम गोइंग टू लेट यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन इंग्लिश। ऑब्जेक्टिविटी इज द रेगुलेटिव आइडियल that guides all inquiry, which is largely a measure directed at how researchers undertake and carry out their research, in that it requires them to be precise, unbiased, open, honest, receptive to criticism, and so on. It means being aware and honest about how one's own beliefs, values, and biases affect the research process. Objectivity is therefore defined, may be defined as the basic conviction that there is or must be some permanent historical matrix or framework to which we can ultimately appeal in determining the nature of rationality, knowledge, truth,
रियलिटी, गुडनेस और राइटनेस। वस्तुपरकता का सीधा सा तात्पर्य यह है कि वस्तुपरकता निष्पक्षता से ओतप्रोत होती है। इसमें घटनाओं को लेकर के, उनके अवलोकन को लेकर के या सामाजिक अनुसंधान के किसी भी स्तर पर पक्षपात नहीं पाया जाता। सीधी सी बात इसके बारे में सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो ये कि वस्तुपरकता में निष्पक्षता का पूर्ण स्थान होता है। इसमें पक्षपात का कोई भी स्थान नहीं होता, पक्षपात से यह मुक्त होती है। नाउ लेट अस have an idea about a few definitions of objectivity. I have selected 3 definitions, one by Green, second by Carr, and third by Robert Bierstein. According to Green, objectivity is the willingness and ability to examine evidence dispassionately. So he simply means to say that in objectivity the researcher remains dispassionate, and quite dispassionately he examines, he makes observations. According to Carr, objectivity of truth means that the phenomenon would be a reality independent of beliefs, hopes, or fears of any individual, all which we find out not by intuition and speculation but by actual observations. So, in this definition, we find that actual observations are made in objectivity, and there is no room for personal or individual beliefs, hopes, or fears. Social phenomena is studied as it is. No manipulation is made. Now let us see what Robert Bierstein says. According to Robert Bierstein, objectivity means that the conclusions arrived at as a result of inquiry and investigation are independent of the race, independent of color, independent of creed, independent of occupation, independent of nationality, independent of religion, independent of moral preference and political predisposition of the investigator. If his research is truly objective, it is independent of any subjective elements, any personal desires that he may have. No doubt, the researcher is a member of society. He is a human being. He has his own nationality, own occupation, own color, own race, own creeds, own religion, own political predisposition, own desires, but he does not let these things enter the process of social research. So, social research, true social research, a legitimate social research, is free from the personal elements. Now, I am going to discuss some of the reasons why objectivity is necessary, why objectivity is essential in social research. As we know,
complete objectivity is not possible in social science. 100% objectivity is not possible. Still, efforts can be made. Aiming at it or attaining as much of it as reasonably possible is a necessary condition for the conduct of all scientific inquiry. Viewing inquiry as subjective or as an entirely individual matter would be the exclusion of all criticisms. Ignoring objectivity would be the exclusion of rational debate. Ignoring objectivity would be the denial of thesis of the intellectual or rational unity of mankind, which opens the door to irrationalism and elitism. जो इसके कारण है ऑब्जेक्टिविटी क्यों होनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि पूर्ण वस्तुपरकता सामाजिक अनुसंधान में असंभव है, लेकिन जितना अधिक से अधिक हो सके वस्तुपरकता लाने का प्रयास करना चाहिए। मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो अध्ययन करता है वो स्वयं समाज का एक सदस्य है। जिन लोगों का अध्ययन किया रहा है वो भी समाज में रहते हैं और अनुसंधानकर्ता के उनके साथ में अलग अलग प्रकार के संबंध हैं और ये संबंध वस्तुपरकता के मार्ग में बाधक सिद्ध होते हैं। तो वस्तुपरकता होनी चाहिए। अगर हम इंडिविजुअल मैटर को, सब्जेक्टिविटी को ही ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से सामाजिक अनुसंधान की आत्मा समाप्त हो जाएगी। यदि ऑब्जेक्टिविटी को इग्नोर करेंगे तो उससे जो रेशनल डिबेट है, जो तार्किक बहस है, उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिविटी सोशल रिसर्च में होनी चाहिए, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिविटी के सोशल रिसर्च की शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उसके परिणाम दोषपूर्ण होंगे, निकलेंगे, अविश्वसनीय होंगे। तो यदि हम चाहते हैं कि अनुसंधान कार्य निष्पक्ष हो, शुद्ध हो, वास्तविक परिणाम हो उसके, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बट द रिसर्चर फेसेस several problems relating to objectivity in social research. सामाजिक अनुसंधान में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, परंतु बहुत सारी समस्याएं आती हैं ऑब्जेक्टिविटी लाने में या ऑब्जेक्टिव रखने में। फर्स्ट इज सोशल साइंटिस्ट इज पार्ट of human society and judgments are subjective and colored by researchers' own experience. पहली समस्या तो ये कि समाज वैज्ञानिक मानव समाज का हिस्सा है और अनुसंधानकर्ता जो भी निष्कर्ष निकालते हैं उनमें व्यक्तिवादिता कहीं ना कहीं होती है, उनकी व्यक्तिगत राय निश्चित रूप से होती है और उनमें उनके अनुभव, स्वयं के अनुभव भी निहित होते हैं। सेकेंडली, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इज टू कॉम्प्लेक्स। ऑल प्रपोजिशंस आर लिमिटेड पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स एंड कंटेक्स्ट।
Thus, objectivity is a major issue in social science research. दूसरी समस्या ये कि सोशल साइंस रिसर्च या सोशल रिसर्च की विषय वस्तु बहुत जटिल होती है और जितने भी विचार हैं, जितनी भी प्रपोजिशंस हैं, वो सामाजिक समूहों या उनके संदर्भों तक सीमित हैं और इस प्रकार से ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है. नेक्स्ट, ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैव डिफरेंट वैल्यूज. सोशल रिसर्चर विल अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर वैल्यूज. तीसरी समस्या ये कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न समूहों के सदस्यों से मिलता है, उनसे सूचनाएं प्राप्त करता है और जैसा हम जानते हैं कि समाज के सभी सदस्यों के अपने स्वयं के मूल्य होते हैं और अनुसंधानकर्ता जब उनसे मिलता है, उनसे सूचनाएं प्राप्त करता है, तो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वह उनके विभिन्न प्रकार के मूल्यों से प्रभावित होता है. Next, social scientist fails to achieve objectivity because the respondents are human beings and they have certain human problems, that is refusal of respondent, improper understanding, reluctance, etc. सोशल साइंटिस्ट ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने में इसलिए असफल रहता है क्योंकि जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो सूचनादाता हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं. उनकी भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अनुसंधानकर्ता को समय समय पर इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जैसे कई बार ये देखा जाता है कि अनुसंधानकर्ता उनसे प्रश्नावली के माध्यम से, ये अनुसूची के माध्यम से या साक्षात्कार हेतु उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछना चाहता है, परंतु सूचनादाता उसके प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर देते हैं. वो बहाने बनाते हैं, बचते हैं. कई बार ये भी देखा जाता है कि जिस उद्देश्य के साथ अनुसंधानकर्ता उनके पास जाता है, वो उस समस्या या अनुसंधानकर्ता की बातों को ठीक से समझने में असमर्थ रहते हैं. कई बार ये भी देखा जाता है कि वो जिद पकड़ लेते हैं. कई बार देखा जाता है कि वो अनिच्छुक हो जाते हैं कि नहीं, इच्छा नहीं है बात करने की आपसे आज. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. Now, let us discuss those factors that affect objectivity in social research. अब हम बात करेंगे उन कारकों के बारे में जो सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता को प्रभावित करते हैं. पहला जो कारण है वो है पर्सनल प्रेजुडिसेस ऑफ द रिसर्चर. अनुसंधानकर्ता के जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हैं, और ये पूर्वाग्रह उसकी स्वार्थ की प्रवृत्ति, उसके अधिक महत्वाकांक्षी होना, मित्रता, संबंध, जाति, समुदाय, वर्ग, रिलीजन, लोकेशन, राष्ट्रवाद, भाषा, प्रोफेशन, बिजनेस, टेम्परामेंट, निराशावाद, आशावाद, उसके जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हैं, व्यक्तिगत पक्षपात हैं, इन चीज़ों के कारण उत्पन्न होते हैं और ये वो कारक है जो ऑब्जेक्टिविटी को प्रभावित करता है.
तो यहाँ सुझाव भी है कि अ सोशल रिसर्चर और से अ रिसर्चर और अ सोशल साइंटिस्ट needs to be free from all his personal prejudices like selfishness, overambition, friendship, relationship, caste, community, class, religion, location, nationalism, language, political affinity, profession, opportunism, sexual bias, business careerism, group bias, temperament bias, power bias, personal bias, pessimism, optimism, fantasism, and militancy. So, the researcher should keep himself free from all these things, and only then there may be chances, there are chances that objectivity is going to be maintained in the research. दूसरा कारक जो सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता को प्रभावित करता है वो है वैल्यू जजमेंट ऑफ द रिसर्चर. वैल्यू जजमेंट here means value related problems that are generally faced, and this type of problem arises from the social context within which research occurs. Third is ethical dilemma, such as relation with sponsors, relation with source data, relation with research subject, etc. And then fourth factor, last but not least, is the complexity of social phenomena. तो अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है, अनुसंधानकर्ता के वैल्यू जजमेंट, उसका एथिकल डिलेमा, सोशल फिनोमेना की कॉम्प्लेक्सिटी, ये कुछ वो कारक हैं जो सामाजिक अनुसंधान में ऑब्जेक्टिविटी को प्रभावित करते हैं. एंड इफ research needs to be full of objectivity, the researcher needs to be free from his personal prejudices, value judgments, ethical dilemma, and he should try to go deeper and deeper into the complexity of social phenomena. Only then it can be understood, it can be studied, it can be observed exactly for the sake of scientific study. Now, प्रश्न ये है कि अब आखिर ऑब्जेक्टिविटी कैसे लाई जाए. अभी तक हम जान चुके हैं कि सामाजिक अनुसंधान में ऑब्जेक्टिविटी होना आवश्यक है. ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने से इस समस्या का निदान हो सकता है. यहाँ कुछ सुझाव हैं. If the social scientist studies what ought to be and what is, some problems of objectivity can be solved. अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि जिस घटना का वो अध्ययन कर रहा है उस घटना का वास्तविक अध्ययन करे, वास्तविकता से जुड़ने की कोशिश करे, वास्तविक अवलोकन करे. अगर इस पर ध्यान दिया जाता है तो उम्मीद है कि स्टडी में ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन किया जा सकता है. सेकंड सजेशन, नीड ऑफ ट्रेनिंग फॉर सोशल साइंटिस्ट्स.
सामान्यतः देखा जाता है कि जब कोई समाज वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य हेतु आगे बढ़ता है तो वो बिना किसी ट्रेनिंग के ही अनुसंधान कार्य चालू कर देता है। एक ऐसी व्यवस्था हो जिसके अंतर्गत सोशल साइंटिस्ट्स को एक प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, और ट्रेनिंग के माध्यम से उनके मन में ये बात बिठाई जाए कि स्टडी का मतलब है, सामाजिक अनुसंधान का मतलब है कि घटना का वास्तविक अध्ययन करना है, उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना है। Then research must be taken in a transparent and open manner and should be subject to critique. अनुसंधान में पारदर्शिता हो, किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन ना हो, किसी प्रकार की एम्बिग्युइटी ना हो, and then a social scientist should not advocate for a particular value. सामाजिक अनुसंधानकर्ता को, समाज वैज्ञानिक को किसी भी एक विशेष मूल्य की वकालत नहीं करनी चाहिए। संक्षेप में, समाज वैज्ञानिक को चाहिए कि वो घटना का वास्तविक अध्ययन करे और इस विश्वास, इस संकल्प के साथ वह अनुसंधान कार्य की ओर अग्रसर हो कि वह तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, अध्ययन के दौरान अपने व्यक्तिगत संबंधों को लेकर नहीं आएगा, घटना का अध्ययन अपनी संस्कृति, अपनी जाति, अपनी धर्म, अपने विश्वासों से मुक्त होकर करेगा, अध्ययन में पारदर्शिता होगी और वो किसी विशेष मूल्य का समर्थन या खंडन नहीं करेगा, सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त रहेगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि अनुसंधान कार्य में ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रखा गया है, व्यक्तिनिष्ठता से वह मुक्त है और उस अध्ययन से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे परिणाम भी शुद्ध, वास्तविक और निष्पक्षतापूर्ण हैं।